So, as my introduction has been already given by Anchor, so myself Pritam Yawalkar, I am Superintendent of Police, presently working in Maharashtra Cyber. We are nodal agency for cyber security in Maharashtra. Before going forward, I want to ask you one question. At when we are talking about cyber crime, then you must be knowing about Jamtara series, right? The tagline of Jamtara is "Sabka number aayega." So they are so confident that everybody will be victim of cyber crime. But there is a catch. We are here as a cyber nodal agency, and we will ensure that सबका नंबर आ सकता है. So we are here to aware everybody that everybody is vulnerable, but it is like a virus, COVID-19. Everybody will be victim of COVID-19, but the person who is having more immune power, they will be less sufferer. So we wants everybody to be having more immunity within your system, so that सबका नंबर तो आएगा बट पैसा कम जाएगा थोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सबके साथ हो चुका है. एंड वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव. एवरीबडी इज अवेयर अबाउट साइबर क्राइम की पैसे जाते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है. मैंने क्लिक किया और मेरा कुछ अमाउंट चला गया, ठीक है. बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट साइबर मर्डर? साइबर मर्डर भी हुआ है. हाउ? तो एक ऐसा केस है, आई कैनॉट नेम द विक्टिम एंड एक्यूज, बट वन हैकर who is knowing about your that victims day to day activity and कौन सी मेडिसिन उसको नहीं जमती है, कौन सी मेडिसिन से उसको एलर्जी है. सो व्हेन दैट विक्टिम वाज एडमिटेड इन वन ग्लोबल हॉस्पिटल, अच्छे से हॉस्पिटल में वो एडमिट है, एंड वेयर टेक्नोलॉजी इज यूजिंग टू गिव हिम मेडिसिन. सो व्हाट दैट हैकर डिड, he just hacked that machine of that computer of that hospital, and he changed the medicine name. And that medicine was, the victim was allergic to that medicine, and he was on slow poisoning. That victim was on slow poisoning due to this hacker. So hacking और cyber threat आपके जान तक ले सकता है आपकी. सो इस लेवल तक वो जा चुका है. एंड अगर वो जो आरोपी जो एक्यूज जो है, उसने अगर किसी को बताया नहीं होता तो उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे. लेकिन ह्यूमन नेचर इज दैट एवरीबडी वांट्स टू शो हिज शो व्हाट ही हैड डिड. सो वो प्राउडली उसने किसी को बताया आफ्टर अ कपल ऑफ ड्रिंक्स इन सम होटल कि मैंने ऐसा किया. एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन पुलिस कुड investigate and arrest him, and what he has done with the hacking system of hospital. So that is there are many examples which we are having with us. We have our team who are the first respondent in one famous bank, and who investigated that crime. So after some time they will also share their experience with you, and what cooperative banks can do in cyber security. They will also guide you in technical way, but these are some super view or bird view of cyber security which I am going to tell you. So what we are doing, Maharashtra Cyber roles and responsibilities. As cyber crime investigation, we investigate important crimes of Maharashtra. We have 43 cyber units, 48 cyber police station in Maharashtra, and if you give any complaint to any police station in Maharashtra, and that investigation officer needs technical support, so they comes to us, because we have one lab, CCPWC lab, and other tools we have with us, which are not available in every police station. So with the help of those tools, we can give them the
data which they want from the device which they have collected from the investigation through their investigation process. So if they have collected mobile from accused, then what to do with that mobile? So we can give the data from our tools which are available at our lab, at our office exclusively. So we do that activity. Technical assistant on field, coordination with other states also, statistic and research. We maintain data of cyber crime in all Maharashtra, and we provide that data to NCRB, which is India's Crime Record Bureau. This is what we does in Maharashtra Cyber Office, training and capacity building. So I would like to thank Banco that they are doing our job also, because training of police officer and those stakeholders. So that is our responsibility, that is our duty to train all people of Maharashtra and obviously in India. So we are doing training and awareness program. So जो भी आपको बाद में साइबर क्राइम के थ्रू आप अफेक्ट हो सकते हो, तो आप कम से कम अफेक्ट होगे. तो इसकी वजह से इसके लिए हम ये सब अवेयरनेस करते हैं. So these are current initiatives and projects by Maharashtra Cyber. AMBIS project, Automated Multimodal Biometric Information System. I am just sharing this just to give what we are doing. Later our technical team will explain for cooperative banks also. So AMBIS में क्या होता है? We collect data of accused like Aadhaar data. Whenever you go to take Aadhaar card, you have to give your thumb impression, fingerprints and iris. So those data will be useful for us for future prevention of crime, because we collect data of all accused, convicted accused, and now we are going in suspected accused also. So once we have that database, then we will be able to prevent crimes, further crimes. So that is AMBIS project we are doing. CCPWC project, cyber crime prevention against women and children. Anti-phishing project also we are running at our office. Then our plan initiative, cyber security project for the state of Maharashtra. This is our flagship project. Our Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis, has this dream that if anybody has some issue related with cyber crime, then he will just give a call to one number, and that number will be one-stop solution for all his cyber security need. We are running also one number, that 1930. If anybody is having any cyber security problem, like if आपको एक कुछ message आया and through that message if some money has siphoned off from your mobile, then you can immediately call to 1930 and we will connect with the concerned bank where that money has went, कि आपके मोबाइल से वो पैसा किसके बैंक अकाउंट में गया है. तो इफ़ टाइम परमिट्स, मीन्स अगर हमारे पास वो कंप्लेंट एकदम तुरंत आई है, तो वी कैन होल्ड दैट मनी, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर जो भी टेक्निकल प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद दैट मनी विल बी गिवन बैक टू द विक्टिम. सो ये जो महाराष्ट्र साइबर प्रोजेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ये नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे जब कंप्लीट होगा, सो ये सारी एक्टिविटी जो है आपको जो भी आपके बैंक में जैसे कस्टमर केयर सेंटर है, वैसे कस्टमर केयर सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, एंड दैट टू बिल्ट बाय Maharashtra government. So government of India and government of Maharashtra has envisaged this type of technology in India. So we are working on it, and within few months or within a year, this cyber security project will be implemented by Maharashtra state. So एक trace unit है, that is technical operation building and cyber quarters. ये जो है ये मैंने बताया. So impact of digitization. So अभी मैडम ने बताया कि एवरीबडी प्लीज़
switch off or silent their mobile. So in a minute there was एक मुझे कुछ याद आ रहा है, जब मैं बचपन में टीवी देखता था, अन्नू कपूर का या कोई होस्ट था, अन्नू कपूर, आई गेस अन्नू कपूर, तो उसका एक सीरियल था जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो। तो उसमें वो कुछ टास्क देता था और वो कंप्लीट करने के बाद कुछ प्राइज़ देता था। मे बी गेस्ट अलग, वो एंकर अलग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ सीरियस था। तो वैसे 1 मिनट में क्या होता है डिजिटल वर्ल्ड में। सो विद इन 1 मिनट 1 मिलियन लॉगिन होते हैं फेसबुक पे, 350 के स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे होते हैं, एंड आपके लिए जो ज़रूरी है व्हाट्सएप, 42 मिलियन मैसेज सेंड। और व्हाट्सएप पे अभी क्या है, आप पैसे भी सेंड कर सकते हो किसी को। सो 42 मिलियंस जो मैसेज सेंड होते हैं उसमें कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र होते होंगे। सो डिजिटल बैंक आपको जो करना है, तो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बट यू हैव टू बी केयरफुल दैट व्हाट काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर बैंक। सो ये सारी चीज़ें 1 मिनट में होती है, और 1 मिनट में लाखों रुपए जा भी सकते हैं, लाखों रुपए आप बचा भी सकते हो विथ प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर क्राइम द लार्जेस्ट क्राइम सिंडिकेट इन द वर्ल्ड। साइबर क्राइम क्या कर सकता है, तो आपके स्मार्टफोन को हैक कर सकता है, बैंक अकाउंट, पेसमेकर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इवन नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है साइबर थ्रेट। पेसमेकर, सो many of you have come from South India also, maybe from Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, I guess what Naik ji has told me. So I am a very big fan of South film industry. So you might have seen one movie CBI. So मैंने वो हिंदी में देखी है, so उसका उधर का वर्जन क्या है पता नहीं, but in that movie one incident was shown that one hacker could hack pacemaker of one person who is having pacemaker in his heart. So वो hack करके उसने उसको मार दिया. So that incident has shown in that movie CBI. उसमें शायद मामूटी जो famous actor है, that is he is he is playing leading role in that movie. So pacemaker भी आप hack कर सकते हो. So that kind of cyber threat we are facing now. What kind of crimes happening in cyber world? Identity theft. Many of the times जो बड़े renowned person है उनके फेक अकाउंट क्रिएट होते हैं, या फिर आपके बैंक में भी किसी आपके कलीग के फेक अकाउंट क्रिएट हुए होंगे और वो आपसे पैसे मांगते हैं. सो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, impersonation of that account. That is not hacking. Hacking is totally different. So आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको एक मैसेज आया है और वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग कि nobody will ask money through Instagram मैसेज. एंड मेरे साथ मतलब मेरा एक अकाउंट क्रिएट किया गया था 2-3 महीने पहले, और उसमें से कुछ लोगों को, मेरे जो फ्रेंड्स है उसमें, उनको मैसेज दिए गए कि आई वॉन्ट 10,000 फ्रॉम हिम. सो वाई वुड आई वॉन्ट 10,000 एंड वाई वुड आई आस्क हिम थ्रू इंस्टाग्राम मैसेज. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच वी हैव टू कंसिडर बिफोर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन. लेकिन अभी भी ये होता नहीं है, बिकॉज वी आर 140 करोड़ and cyber criminals are targeting only 4 to 5% of population. उनको भी उन्होंने टारगेट किया, then also the amount is huge. और ये जमतारा वाले जो है उनका टारगेट है डेली, वो अपॉइंट करते हैं, जो एक हेड रहता है वो अपॉइंट करता है कुछ लोगों को, एंड ही गेव टारगेट टू दैट पर्सन कि आप 25,000 डेली का कमाना. कैसे वो आप देखो, तो वो 25,000 डेली कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी कॉल करता है, OTP भेजता है, पैसे साइपन ऑफ करता है. लेकिन बिफोर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज एवरी लिंक कमिंग टू योर मोबाइल, टू योर email would make you victim of cyber threat, cyber crime. और एक बार वो पैसा चला गया
मेरे केस में मेरा जो अकाउंट क्रिएट हुआ था उसमें 2 लोगों ने फिर भी पैसे डाले, वो पैसा चला गया एक बैंक में। मैंने वो बैंक को भी कॉल किया, दैट बैंक होल्ड दैट मनी, लेकिन बिफोर होल्डिंग दैट मनी कुछ पैसे जो थे उसने पेटीएम से कुछ खर्चा कर दिए, कुछ प्रोडक्ट ले लिया। तो एक बार वो पैसा अगर कुछ प्रोडक्ट परचेस करने में चला गया, देन वी कैन नॉट रिकवर दैट मनी। और ये तो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ छोटे छोटी अमाउंट डाली थी, लेकिन ऐसी बड़ी अमाउंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ टाइम की जो पूंजी है वो चली गई है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ क्राइम दे आर प्लेइंग विथ अस। साइबर स्टॉकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, फ्लड अटैक्स, पोटेंशियल अनवांटेड प्रोग्राम्स। ये जो है पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स, तो इसकी केस स्टडी मेरे जो कलीग है वो आपको बाद में बताएंगे कि हाउ वन बैंक जस्ट बाय क्लिकिंग वन ईमेल उनका 94 CR का जो भी अमाउंट है तो वो कैसे लीड किया था एक ईमेल ने, जस्ट बाय क्लिकिंग वन ईमेल एंड दैट लिंक। तो वो आपको बाद में केस स्टडी में बताया जाएगा। फिशिंग अटैक्स, इलीगल कंटेंट, ऑनलाइन स्कैम्स, ये सारी चीज़ें आपको सबको पता होती है, लेकिन एट मोमेंट एक ऐसा टाइम होता है कि आप उसको क्लिक कर ही देते हो या फिर आपको सच लगने लगता है। जो गोबेल्स की थ्योरी है कि आप जितने बार झूठ को फैलाओगे तो एक सर्टन टाइम आ जाएगा कि उसको आप सच समझने लगोगे। सो वो थ्योरी पे ये लोग काम करते हैं कि आपने कितने भी बार आपके मोबाइल में आए हुए मैसेज को इग्नोर किया, बट कुछ ऐसी लुक्रेटिव ऑफर आपको मिलती है कि आप उसको क्लिक करने से खुद को नहीं रोक सकते हो। सो वो पॉइंट रहता है, फिर आप उस चक्कर में फंस जाते हो। अभी मैं एक्चुअली आई एम नॉट computer graduate, I am commerce graduate and you all are working in commerce field. So आपको GDP ये सारी चीज़ें में इंटरेस्ट रहता है, मुझे भी इंटरेस्ट है। So world's top 5 economies as per GDP, USA, China, Japan, Germany, India. So which is the third largest economy as per GDP? So there is a catch. Annual worth of cyber crime, $10 trillion. So they are running third largest economy in the world. So इतना बड़ा उनका मार्केट है. So why would anybody go to office, do 10 to 5 job? If somebody has basic level of computer engineering, then he will go to learn ethical cyber hacking. He will first learn ethical cyber hacking, then he will do illegal ethical hacking for gain of himself. So that is the catch. Who is behind cyber attacks? Online criminals, hackers, malicious insiders, cyber terrorist. So ये online criminals तो होते हैं, hackers होते हैं, आपके लिए malicious insiders. So ये भी आपको चेक करना पड़ता है कि the person to whom you are giving your cyber security project, तो वो कौन है? Because recently I am getting one application from one company who has given their important data to one company for collection. They are also running finance company, so they have spent many of their much money to as a loan to students. They are running school fee financing company. So for collection they have appointed one company to collect money, and they have given their data that we have given this money to that person, this money to that person, and you just recover that data from those people. So that money from those people, उन्होंने क्या किया, वो डेटा लिया, that company has taken that data from one finance company, and they have formed subordinate company under their name. उन्होंने वो डेटा उनको देने के बाद में वो थर्ड कंपनी ने क्या किया, इनका डेटा यूज़ करके खुद के अमाउंट पे पैसे लेना शुरू कर दिया। जैसे कि वो उनको जो कस्टमर है उनको क्या बोलते थे कि ये हम उनके लिए कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं,
तो वी आर रिकवरी एजेंट फ्रॉम दैट कंपनी. तो मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है. सो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है. इफ़ यू आर अपॉइंटिंग एनी साइबर सिक्योरिटी पर्सन एंड इफ़ यू आर गिविंग डेटा टू दैट पर्सन, तो आपको उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या फिर आपको पीरियोडिकल रिव्यू करना चाहिए कि वेदर योर डेटा इज गोइंग टू अदर हैंड और नॉट. बिकॉज अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 72A, डेटा लीकेज इज ऑल्सो अ क्राइम एंड विच इज़ नॉन बेलेबल कॉग्निजिबल क्राइम. सो आप जो भी डेटा किसी को देते हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्लॉज उसमें डाल के दीजिए कि यू वुड बी, आप जो अगर डेटा लीक करते हो तो यू वुड बी बुक्ड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो दैट इज़ मैलिशियस इनसाइडर्स, आपको केयर करना है. मालवेयर्स, साइबर थ्रेट्स. सो मालवेयर्स क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, स्मिशिंग क्या होती है, विशिंग क्या होती है. So malwares are just random programs created to breach your computer system, breach your cyber security. So ये malwares क्या करते हैं कि आपको आपके कंप्यूटर में जाते हैं, आपके मोबाइल में जाते हैं और आपका जो भी डेटा है वो लीक करते हैं और उस डेटा के बेस पे जो भी पैसे हैं वो निकाल लेते हैं. फिशिंग जस्ट आप किसी को मैसेज करते हो, मेल करते हो, वेट करते हो कि वो खुद होके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, OTP इन्फॉर्मेशन देगा या फिर आपकी जो बेसिक्स है वो इन्फॉर्मेशन देगा. तो ये फिशिंग है. सेम टाइप ऑफ जो वर्क अगर SMS के थ्रू होता है तो वो स्मिशिंग है. टेक्स्ट मैसेज दैट लीड्स टू यू टू टेक वेबसाइट दैट इमिटेट्स रियल कंपनी. आपकी कंपनी का अगर किसी ने एक अकाउंट बना दिया या फिर ऐसा फेक क्रिएट कर दिया कि एक वेबसाइट है वो लगती है कि आपके बैंक की है, तो कोई भी आदमी, आपका जो कस्टमर है वो उस वेबसाइट पे जाएगा, उस वेबसाइट पे जाके उसका जो भी डिटेल्स है वो फिल करेगा और वो सारा डेटा जो हैकर्स है उनके पास चला जाएगा. सो दैट इज़ स्मिशिंग. सो कभी भी आप अगर चेक करना है तो आपको जो वेबसाइट है उसका हेडर चेक करना चाहिए. HTTPS जो होता है तो वो चेक करना चाहिए, उसमें S मिसिंग होता है. या फिर SBI.com अगर होगा तो SBI.com नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि जो नहीं होने चाहिए उसमें. और गूगल में अगर आप सर्च करते हो तो गूगल सर्च के जो फर्स्ट रिजल्ट रहते हैं उसमें एड्स वगैरह छोड़ के जो नीचे एक्चुअल जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना चाहिए. नहीं तो क्या होता है कि आप एड्स पे भी क्लिक कर देते हैं और फिर वो एड्स आपको वैसी साइट्स पे लेके जाती है. विशिंग, द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग और द टेलीफोन. जो जमतारा सीरीज में जो दिखाया है, आपको कॉल करते हैं और आपको OTP मांगते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको मांगते हैं, तो दैट इज़ विशिंग. सो this is all about overview of cyber crime. It is very technical field and it's like making a reel of a 3 hours movie. So 3 hours movie का आप रील तो नहीं बना सकते, लेकिन we have tried to comprise material which we have, and the further material which we are going to show you is quite technical, and my colleagues who are experts and who already have investigated such matters, who are first respondent in major cyber crime attack over one bank. So they will guide you and they will show you the next slides. Thank you. Really wonderful speech. My humble request to Avinash sir and Ashok sir, please do share this PPT to all the banks if possible. So after completion of our presentation, we'll. It's really good. Thank you. Thanks. It's not only making money, but it has harmony and happiness also. Thank you. Good. 1 minute and all. Really appreciate. So good morning, gentlemen. सबसे पहले बैंकों में नाइक सर और सिंत्रे सर का हम लोग आभारी है, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम अवेयरनेस का आपको बता सके कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ है. Basically, my name is Navnath Devgude. I'm from Maharashtra State Cyber Department. So, working as a senior cyber crime investigator.
अभी सभी लोग मे भी सभी कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर से ही होंगे ऐसा लगता है. इज़ इट ओके ना? सो बेसिकली हम लोग का कैसा है कि डेली हम लोग को आप बोल सकते हो कि विद इन मंथ में 3 से 4 कंप्लेंट्स आती है कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर से रिलेटेड कि ऐसा हमारे साथ मतलब अटेम्प्ट हुआ या फिर कोई मॉलवेयर डिटेक्ट हुआ, हमारे सिस्टम में कुछ पॉपअप्स जनरेट हुए. तो सडनली जब हम लोग विज़िट करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्या करना है. इंसिडेंट रिस्पांस में मेनी ऑफ बैंक ऑफिशियल्स डोंट नो कि क्या करना है ये सिचुएशंस में. वो कुछ लोग ऐसे हैं कि फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. कोई वहाँ के जो आईटी के बंदे हैं, हेलो, हाँ, कोई आईटी के बंदे रहेंगे तो वो लोग फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं. कुछ लोग डायरेक्टली नेटवर्क बंद कर देते हैं, नेटवर्क का एक्सेस बंद कर लेते हैं. तो बहुत सारे सिचुएशंस होते रहते हैं. बहुत सारे ऑफिशियल्स को पता नहीं होता कि क्या करना है ऐसा कुछ होने के बाद वगैरह. तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर आपको रियल टाइम क्या सिनेरियो होता है और हम लोग को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं और पब्लिक को या फिर जो बैंक ऑफिशियल्स को क्या क्या इश्यूज आते हैं उससे रिलेटेड ही हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे. पहले हम लोग जनरली एक साइबर टेररिज्म का हम लोग एक जो हमारा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको शेयर करते हैं. माइक है. हेलो. सो हम लोग ने जनरली 4 सेक्टर में हम लोग ने रिस्क को देखा है कि सबसे पहला रहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट रहता है. सेकेंडरी में आता है फाइनेंशियल सेक्टर. थर्ड में हम लोग उसको ये करते हैं कि कंपनीज वगैरह रहती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. और फोर्थ में आता है जनरल पब्लिक. सो अभी साइबर टेररिज्म मतलब क्या होता है कि जब बाहर के कोई भी मतलब कंट्री से होने एनिमी कंट्री से होने वाले अटैक या फिर इनसाइडर्स कोई भी रहेंगे जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर. सो जिसमें हम लोग पावर ग्रिड्स वगैरह जैसे इलेक्ट्रिक आउटेज डैम्स वगैरह रहते हैं तो इन पे भी अटैक होता है. जैसे सर ने अभी बोला कोई डैम है और डैम में कैसा ऑटोमेशंस का प्रोसेस है. तो डैम में अगर आपको क्लोरीन का एक 100 किलो का क्लोरीन आपको उसमें मिक्स करना है और अगर ऑटोमेशन है और हम लोग कोई हैकर हैक कर लेता है और 100 kg के जगह अगर 1000 kg वो क्रिएट मतलब उसका जो ये बढ़ा देता है क्लोरीन में, क्योंकि ऑटोमेशन होता है तो वो पॉइजनस हो जाता है. तो फिर वो सिस्टम का सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आने वाले हम लोग के पास चैलेंजेस है. लास्ट 2020 में एक बॉम्बे में पावर आउटेज हुआ था, वो भी हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया था. तो वो ठीक है. अभी दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ एजेंसीज को भी थ्रेट रहता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी हम लोग को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं. जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी, ये भी हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया वैसे वो भी आता है. रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम अगर ये किसी ने हैक कर लिया तो वो भी कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो वो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया कि कोई हॉस्पिटल का अगर सिस्टम हैक कर लेगा तो पूरा जो मेडिकल जो भी जो सप्लीमेंट देना है या फिर जो भी पेशेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो वल्नरेबल होने के बाद बहुत सारे इश्यूज या पैनिक क्रिएट हो सकता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बताया जैसे एयर ट्रैवल्स वगैरह रिलेटेड. तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को काउंट करते हैं. तो जनरली बैंकिंग सेक्टर से अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आप लोग सभी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो. वेब एप्लीकेशंस तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स तो डीडीओस अटैक्स रहते हैं. तो जनरली अभी ज़्यादा आपको टेक्निकल नहीं जाते हम लोग. ये कार्ड स्कीमर्स वगैरह रहते हैं, प्रिविलेज मिसयूज़, क्राइम वेयर अदर, ये तो जो उसका अटैक्स का जो क्वांटिटी है हम लोग ने थोड़ा डिस्टिंग्विश किया था. लेकिन बैंकिंग सेक्टर में सर अनइंक्रिप्टेड डाटा, सो इंक्रिप्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका जो भी डाटा जो आपके सर्वर या जो भी आप कम्युनिकेशंस होता है तो जनरली वो इंक्रिप्शंस अभी तो बेसिकली सब लोग कर रहे हैं. उसमें मॉलवेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है.
थर्ड पार्टी सर्विसेज में हम लोग वेंडर वगैरह अपॉइंट करते हैं, तो उसका जो इंटीग्रिटी है या वेंडर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका भी हम लोग को थोड़ा मतलब उसका वो कंप्लायंस फॉलो करता है क्या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी हम लोग को देखना है जब भी आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हो या कोई सर्विसेज उससे लेते हो। जनरली स्पूफिंग फिशिंग्स तो ये नॉर्मली क्रिमिनल्स के थ्रू होने वाले अटैक्स है। तो ये साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस इन इंडिया का एक नॉर्मल रिपोर्ट है जो 4 लाख मॉलवेयर फाउंड। तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो अटैक्स डेली चलता ही रहता है, तो आप लोग को भी इसमें अवेयर रहना है। और हम लोग को ये RBI रेग्युलरली जो भी है नोटिसेस इश्यू करते रहते हैं। बेसिकली आपण आता ह्यांच्यावरती जागा केस स्टडीवर। हेलो, हाँ, तो हम लोग अभी केस स्टडी पे ज़्यादातर जाएंगे। ये कुछ केसेस है जो कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है, जो बैंक में अपना न्यूज़ आर्टिकल्स हो गया टाइम्स में। ये केरला का आ गया, मंजेरी कोऑपरेटिव बैंक का था। हमारे इधर 2018 में एक कोऑपरेटिव बैंक का भी हुआ था, और लास्ट में भी हैदराबाद का भी एक केस है। जनरली ये क्राइम सीन महाराष्ट्र दिखा रहा है कि इतना क्राइम्स हो रहा है। जो परसेंटेज है नेट बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट बैंक फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंक्स पे जो कस्टमर केयर से रिलेटेड वगैरह। ये सर हम लोग का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हम लोग डार्क नेट भी मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो कुछ बैंक का डिटेल्स रहता है जैसे एक डार्क नेट पे आ गया था, कुछ बैंक के इंटरनल पासवर्ड्स रहते वो भी आते हैं, और सिम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स का डिटेल भी वो कंटिन्यूस आता रहता है, जो कुछ हैकर्स हैक करते हैं और वो शेयर करते हैं सेल के लिए। तो अभी तू है ठीक है, तो क्या एक केस स्टडी है वो अपने विवेक सर बताएंगे। Good morning all. Okay, before we move to the this case study, एक ऑब्जर्वेशन बताना था कि मैं पिछले 4-5 साल से बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के बैंक हिस्ट में इन्वेस्टिगेशन किया हूँ। सो सर ने बताया था वी आर द नोडल एजेंसी फॉर द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, बट व्हाट हैपन, we should be the first responder for any kind of bank heist, but we observe that we are the fourth or fifth responder to this kind of bank heist. What happens, कैसे भी एक बार आपके बैंक में से पैसा चला जाता है, इवन डू बाय योर सर्वर कॉम्प्रोमाइज होने से हो सकता है, या ड्यू टू फेक बेनिफिशरीज ऐड करके पैसा निकाला गया, वैसे कुछ भी हो सकता है। पर पहले ये इशू एस्केलेट हो जाता है मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट के बाद हो जाता है कि केस करने का या नहीं करने का, क्या हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं मैनेजमेंट लेवल पे। मैनेजमेंट लेवल पे मिटिगेट नहीं होने के बाद इट विल बी एस्केलेट टू द लोकल पुलिस स्टेशन। व्हेन इट गोज टू द लोकल पुलिस स्टेशन बोलते हैं इट्स रिलेटेड टू द साइबर क्राइम, देन इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन, एंड आफ्टर 1 month or 2 months the bank will come to us, or after we start the investigation. What happened, this is the golden period, उसमें हम बहुत सारा एविडेंसेस लॉस कर देते हैं। तो मुझे आप सबसे एक सजेशन है कि वंस यू केम अक्रॉस सच टाइप ऑफ बैंक हिस्ट सिचुएशंस, यू शुड फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू अस, टू द नोडल बॉडी ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ द महाराष्ट्र साइबर। तो उसके बाद क्या होता है, 1 or 2 days में जो लॉक कैप्चरिंग्स रहता है, फॉरेंसिक्स इसमें जो भी एविडेंस कलेक्शन करना होता है वो प्रोसेस हम लोग कर देते हैं। देन आफ्टर वी गो टू द लीगल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द FIRs एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ईच बैंक्स इज अपने रेपुटेशन के हिसाब से सोचती है कि इसमें रेपुटेशन हमारा कम हो जाएगा, कस्टमर्स डर जाएंगे कि पैसा जा रहा है, कस्टमर कम हो जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो कॉस्मोस बैंक हिस्ट सबको पता है, इट इज़ वन ऑफ द वर्सटाइल्स बैंक हिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ये बैंक हिस्ट और बाकी के जो कोऑपरेटिव बैंक्स के बैंक कॉम्प्रोमाइजेशंस है, ये बहुत ही अलग है। इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड मालवेयर इज बी प्लेस ऑन द स्विचेस ऑफ द बैंक सर्वर्स। क्या हुआ था, जो कोऑपरेटिव बैंक्स आपकी रहती है, कोऑपरेटिव बैंक्स इज don't do direct transactions with the nationalized banks. You require some kinds of nationalized partners who will make the transactions. So you tie up with some kind of nationalized banks, whether it is a nationalized banks or it may be a private banks. So what happened,
the hackers, or we don't call as a hackers, these are the state actors. What is meant by the state actors? अभी क्या चल रहा है, पहले के ज़माने में लड़ाई होती थी, आर्मी जाते थे, एयरफोर्स, इससे लड़ाई होती थी. अभी वैसी लड़ाई नहीं होती है. अभी क्या जाती है, स्टेट एक्टर्स प्लान की जाती है एनिमी कंट्रीज़ के थ्रू. एनिमी कंट्रीज़ कौन से है? पाकिस्तान, चाइना. स्टेट एक्टर्स मतलब हैकर्स रहते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है गवर्नमेंट एंटिटी थ्रू, और उनको बोला जाता है कि इंडिया की जो अभी इकोनॉमी चल रही है उसको हमको रुकाना है, उसका जो स्पीड है उसको रुकाना है. तो व्हाट दे डू, दे finance these kinds of hackers, they form the group and they attacks our financial services. तो उसके थ्रू इस प्रकार ये पैसा निकला जाता है. देखो, इस बैंक हैज हिस्ट में टोटल द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आई गेस 16 plus countries, and the fake accounts is opened in different 16 plus countries. So what happened, first the malware is implanted into the system through the one single email. सोच सकते हो, एक सिंगल ईमेल आपके बैंक का 94 करोड़ निकाल सकता है. एंड मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद, आज मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो कल मेरा 94 करोड़ नहीं गया. It takes about 4 to 6 months for recurrence. Means what? They observe their activity कि ये जो मालवेयर हम लोग ने इम्प्लांट किया है, ये कंप्यूटर क्या करता है, इसकी अथॉरिटीज़ कौन है, इसका मैनेजर कौन है, इसको कौन सा फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है. आफ्टर दैट इट विल बी स्प्रेड थ्रू द डिफरेंट थ्रू द नेटवर्क्स टू द डिफरेंट कंप्यूटर, इट इन्फेक्टेड टू द डिफरेंट कंप्यूटर. और उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया कि ये बैंक का आर्किटेक्चर ऐसा है, इसका ये कंप्यूटर है, इसमें ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये चेकर है, ये मेकर है. चेकर मेकर इज द वेरी क्रूशियल कंपोनेंट इन योर कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके, तो उसके बाद उन्होंने, but in Cosmos Bank, as I say, it is a very versatile kind of attack. What they do, they design a sophisticated malware of that particular switch that bank uses, or these malwares इंस्टॉल एंड दैट पर्टिकुलर स्विच, और उसको डी डे मतलब क्या करते हैं, वो ऐसा दिन चुनती है जब बैंक बंद रहती है, जस्ट लाइक एन सैटरडे और संडे, और दे प्लेस दिस मालवेयर एंड दैट पर्टिकुलर स्विच. और ऐसे वो स्विच पे मालवेयर प्लेस करने के बाद क्या हुआ, जनरल ट्रांजैक्शन सिनेरियो कैसा रहता है, कोई भी आपका कस्टमर आता है, एटीएम में कार्ड डालता है या ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे जाता है, लॉगिन करता है, पैसा भेजने का करता है, तो रिक्वेस्ट पहले किधर आता है, आपके स्विच पे आता है बैंक के. देन इट विल बी चेक टू द CBS सिस्टम, इट विल चेक द बैलेंस एंड देन अप्रूव योर रिक्वेस्ट. पर इसमें क्या हुआ था, कोई भी रिक्वेस्ट आना, द रिक्वेस्ट इज फ्रॉम द ATM, इट इज फ्रॉम द ऑनलाइन बैंकिंग, इट गोज टू द दैट पर्टिकुलर स्विच ऑफ द बैंक. और वो मालवेयर क्या करता था, CBS को जाता ही नहीं था, इट डायरेक्टली अप्रूव दैट रिक्वेस्ट and send the response to the particular ATMs. तो उसमें क्या किया गया, हैकर्स ने बहुत सारे हॉट लिस्टेड हम लोग कार्ड्स बोल सकते हैं और फेक कार्ड्स बोलते हैं, उसका उन्होंने यूज़ किया. कोई भी ATM में जाओ, आप उसमें इंसर्ट कर दो and it should be the card of that particular bank, the request is goes to that particular switch, it's approve the request, or then the response is goes to the respective ATMs. तो ये सब करके उन्होंने टोटल 94 करोड़ निकाल दिया. तो इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ अटैक. तो कॉस्मोस बैंक में तो, और हम लोग ने उसमें 30+ पर्सन्स को हम लोग ने अरेस्ट किया, और वो मालवेयर इतना पावरफुल था कि वो सेल्फ किलिंग मालवेयर था. इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय, खुद को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, लॉक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया. तो इतना पर्टिकुलर था. पर जनरल जो बैंक हिस्ट के केसेस रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो उसमें क्या हो जाता है, चेकर मेकर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है. चेकर मेकर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जाता है कि एक आधा मालवेयर आ जाता है, इट विल बी सेट ऑन चेकर सिस्टम और द मेकर सिस्टम, देन दे आइडेंटिफाई कि ये हर एक सिस्टम की अथॉरिटी क्या है. उसके बाद वो फायरवॉल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते. देखो, कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी को एक ही मानते हैं. एक ही जो IT का बंदा है वही साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करता है. देखो, ये अलग अलग चीज़ें हैं. जो
जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता है वो साइबर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद के लूप होल्स पैचअप नहीं कर सकता। पर कोऑपरेटिव बैंक्स में यही चलता है कि एक ही को जो भी काम दिया जाता है वो आईटी का सिक्योरिटी की भी देखता है और साइबर सिक्योरिटी भी देखता है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ओके, सो ये सजेशन है कि these are the two person or the two agency which will be maintaining the different area. साइबर सिक्योरिटी अलग है और आईटी सिक्योरिटी अलग है। सो एक मिनट, नॉर्मली ये अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन किया तो हम लोग को पता कैसे चला कि ये ईमेल के थ्रू आया। तो जनरली हमने वो जो सिस्टम था, जो चेकर था, तो उसको हम लोग ने मतलब थ्रू लॉग एनालिसिस जो फॉरेंसिक्स वे में किया तो हमको मिला था। तो हमने स्टेटमेंट लिया था जो लेडी थी वहाँ पे जो ऑपरेट करने के लिए थी, सीनियर अकाउंटेंट। तो उनसे पूछा गया तो सडनली हम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आई कि बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला था कि आपके पास अगर इतना मेल्स आता है डेली का तो आप उनको एक ही दिन में एटलीस्ट अप्रूव करो। तो उनके जो पेंडेंसी थी वो 10, 12 या 14 थी और उनको घर जाने का था 5, 5:30 बजे का टाइम था। तो अगर मैंने वो मेल चेक नहीं किया तो मैं घर नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने हर मेल को क्लिक किया विदिन 5 मिनट्स। तो वो चीज़ थी कि जिसमें वो मॉलवेयर अपलोड हो गया था। तो ये भी चीज़ें होती है जनरली। दूसरे सारे जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस का जो ये हुआ था, स्विच के थ्रू एक्सेस दिया गया था। तो वो मॉलवेयर में उन्होंने क्या किया था कि वो बैंक के मल्टीपल कार्ड बना लिए थे जो, और रूल सेट किया था कि ये टाइमिंग में आप कितना भी पैसा विड्रॉ करो, ओवरऑल कहाँ से भी, इंडिया से भी और इंटरनेशनल से भी वो ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो ये जो ग्रुप था ये दुबई से ऑपरेट हो रहा था और उसके कनेक्शन हमको बाद में मिले जाके। तो उसका प्रोसेस चालू है। हमने कुछ पैसे भी रिकवर किए, पैसे फ्रीज भी किए थे। लेकिन लूप होल्स ये हम लोग को ये बैंकिंग सिस्टम में मिला। वहाँ पे जो आईपी से रिक्वेस्ट आया था तो उनका वाइट लिस्टिंग भी नहीं था। जो ब्लैक लिस्टेड आईपी था उसको एक्सेस मिल गया। तो बहुत सारे मतलब वहाँ पे मिले। वापस हमको ये जो बैंक के केस में जो चेकर मेकर है वहाँ पे कुछ रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस भी मिले। और रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस तो फाइनेंस में मतलब ये बहुत ही ऊपर का लेवल हो गया। मतलब ये एक्सेस देना नहीं, वो सिस्टम स्टैंड अलोन होना चाहिए था। ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन जो ये मैनेजर थे या फिर सीनियर अकाउंटेंट थे वो रिमोट एप्लीकेशंस यूज़ करते थे। तो वो इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला। और वो जो मॉलवेयर वगैरह ऑपरेट हुआ या फिर उसने जो कोई क्रिमिनल है उसने एक्सेस दिया, ये सभी रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस के थ्रू ही उसने डेटाबेस में भी गया, वो डेटाबेस में भी छेड़खानी की। एक सिमिलर केस है इसके बाद वाला। ये कुछ मोडस ऑपरेंडी वगैरह हम लोग ने, हाँ ये कुछ बताया था। तू सांग पाहिजे तो तेवढं। नहीं, अभी मैंने जो बोला था कि हाँ 30+ कंट्रीज आउटसाइड ट्रांजैक्शंस हुआ था। इट इज़ रिलेटेड टू द कॉस्मोस बैंक हिस्ट। उसमें से कुछ हॉट लिस्टेड्स और इनएक्टिव कार्ड्स को भी एक्टिव किया गया और वो मालवेयर के थ्रू सब 94 करोड़ का मनी साइफन ऑफ किया गया। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो दिस इज द केस स्टडी 2। ओके, उसमें क्या हुआ था, दिस इज बैंक इज सिचुएटेड इन ठाणे। व्हाट हैपन कि हम लोग अभी सर ने बोला था, इसके पहले एक सेशन हुआ था उसमें बोला कि हम लोग को वी हैव टू मूव टू द डिजिटलाइजेशंस और वी आर ऑन बोर्ड द डिफरेंट फिनटेक पार्टनर्स। सो व्हाट हैपन, बिफोर ऑन बोर्डिंग दिस फिनटेक पार्टनर्स यू हैव टू डू द बैकग्राउंड चेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स, क्योंकि पता है कि वंस दे आर ऑन बोर्डिंग विथ यू दे हैव टू हैंडल योर सेंसिटिव डेटा. They are going to handle your sensitive data. So what happened in this case, there is a one vendor, what it does, they deploy the system in their blank and they know what is the loopholes of their systems. So what happens, after deploying their system in their banks, after 3 to 4 months, they know the loopholes through which they get directly access to their database. और उन्होंने क्या किया कि वो लूप होल का यूज करके जो कस्टमर्स के मोबाइल नंबर थे वो बैकएंड से चेंज किए गए. सो आपकी जो मोबाइल बैंकिंग चलती है, वेब एप्लीकेशन चलते हैं, वो सब किस पे चलते हैं?
इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर मोबाइल नंबर्स. वंस योर मोबाइल नंबर इज चेंज, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते. तो उन्होंने वही किया और वो वर्नेबिलिटी को एक जो फ्रॉडस्टर ग्रुप था उनको ये वर्नेबिलिटी मिल गई और उन्होंने भी एक छोड़ के 4-5 नंबर चेंज कर दिए. और उसके बाद उन्होंने वो चेंज करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके टोटली 1.5 करोड़ मनी दूसरे अकाउंट में भेजे गए. आफ्टर दैट वी अरेस्टेड 4 to 5 पीपल्स एंड उसके पीछे सब नाइजेरियन गैंग थी, बिकॉज द नाइजेरियन पीपल इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टाइप्स ऑफ केसेस. सो मेरा कहना यही है कि बिफोर यू ऑनबोर्डिंग एनी काइंड ऑफ फिनटेक पार्टनर्स, तो उनका बैकग्राउंड चेक्स क्या है, इन्होंने पहले प्रोजेक्ट क्या किया, उसका हिस्ट्रीज क्या है. और दूसरी बात है कि एक यू हैव टू अपॉइंट सम कंसल्टेंट कि कैसे रहते, हम लोग सब में एक्सपर्ट नहीं रहते. यू आर द बैंकर्स, यू नो हाउ टू डू द अकाउंट्स. और सो बिफोर डिप्लॉइंग दैट यू हैव सम काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स कि उसमें मेजर सिक्योरिटी मेजर्स क्या होने चाहिए. और दूसरी बात ये है, एज यू आर डूइंग एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट फिनटेक पार्टनर्स, तो एग्रीमेंट में जो लिखे गए सर्विसेज है उतने ही आपको सर्विसेज लेनी है. तो पार्टनर्स क्या करते हैं, फिनटेक पार्टनर्स क्या करते हैं कि सर ये 4 सर्विसेज हमने मांगी है, नहीं वी आर गिविंग 7 सर्विसेज. तो उसमें से जो 3 एक्स्ट्रा सर्विसेज उसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं रहती है. और व्हेन बैंक हिस्ट्रीज हैपन, तो उसमें ऐसा पता चलता है कि वो 3 ही सर्विस को यूज़ करके आपका पैसा चला गया है. बेसिकली इन कोल्हापुर आई एम इन्वेस्टिगेशन 1 केस, उसमें व्हाट हैपन कि एक बैंक ने दूसरे पेरेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था. उसमें उन्होंने सिर्फ नेफ्ट ट्रांजैक्शन और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन का ही सर्विस लिया था. पर जो पेरेंट बैंक जिसका सर्विस लिया था, उन्होंने क्या बोला था, वी आर ऑल्सो गिविंग द IMPS सर्विस एडिशनली और इट विल बी नॉट मेंशन इन टू द एग्रीमेंट. और जो चेयरमैन थे बैंक के, उनको पता भी नहीं कि वी ऑल्सो अवेलिंग द IMPS सर्विस. उसमें बैंक से जो सब 70 लाख निकल गए उसके अकाउंट से, तब पता लगी इट विल बी साइफन ऑफ थ्रू द IMPS चैनल. IMPS service activated, about 100+ IMPS registration is there, and after this money is going through their cooperative bank. So these kind of things happens. When you are doing the agreement, mention specifically we are only availing this service, we don't want additional service. Okay? तो वो बोलते कि एग्रीमेंट में लिखा नहीं पर हम लोग एडिशनल दे रहे हैं ना. पर जब बैंक हिस्ट्री होता है तब यही सब कारण रहते हैं उसके पीछे, उनके एडिशनल सर्विसेज. ओके, तो दीज आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू मेक वाइल ऑनबोर्डिंग एनी फिनटेक पार्टनर्स और एनी काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स विद अदर बैंक्स. बेसिकली कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में अभी आप लोग कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं. जनरली हमारे जो फाइंडिंग्स है वो जस्ट हम शेयर कर रहे हैं. कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं तो कंसल्टेंट का एक फर्म अपॉइंट करते हैं. तो कंसल्टेंट का फर्म क्या करता है, CA का काम, बाकी अदर वर्क्स भी, बिडिंग प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह वो भी करता है. लेकिन विथ द सेम वो क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. जो अभी हम लोग को देखने में आया है कि दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि उसको कैसे आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका, उसको कस्टमाइज़ कैसा करना है. तो वो कुछ नॉलेज नहीं रहता. एक बंदा रहता है, एक कंपनी रहता है, वो बोलता है मैं कंसल्टेंट हूँ, आप उससे एग्रीमेंट करते हैं और वो सभी सर्विसेज उससे ले लेते हैं. और फिर गाड़ी उधर ही अटकता है. वो कुछ किसी 40-50 हज़ार बंदे वाले को रखता है साइबर क्राइम ऑडिट के लिए, सिक्योरिटी के लिए. और वो ऑडिट करता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करता है, फ्री टूल्स का, और एक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करता है. सब सिक्योर है. लेकिन देखिए, दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में 100% से सिक्योर कोई चीज़ नहीं है. लेकिन जो सिक्योरिटी मेजर्स जो ISO 27001 अभी नया 2022 आया है, तो हम लोग इसको जनरली बोलते हैं कि ये कंप्लायंस फॉलो करो. तो एटलीस्ट ये कंप्लायंस भी उसको मालूम नहीं रहते. बेसिक जो गलती है वो ये लोग कर देते हैं कि ये कंसल्टेंट्स को नॉलेज नहीं रहता. अभी ये केस में भी यही सेम हुआ था कि चेकर मेकर के साथ जो एडमिन एक्सेस था वो कम से कम बैंक में 10 से 11 सिस्टम्स को अलॉट किया गया था. नेटवर्किंग का एक्सेस, जो नॉर्मल प्रिंट निकालने वाला बंदा उसको भी एडमिन्स के राइट्स थे ये बैंक में. और जो IP जो मैक बाउंडिंग वगैरह जो प्रोसेस रहती है, या स्टैटिक IP यूज़ करना है, वो भी नहीं था. तो और इनके मोर देन 100 ब्रांचेस थे. आप किसी भी ब्रांच से अगर आप एक्सेस करते हो तो उसका IP मतलब वो आपको बाउंड करना चाहिए था, बाइंड करना चाहिए था विद द सर्वर. तो वो भी हम लोग को दिखा नहीं. मतलब मल्टीपल बैंक्स में मल्टीपल टाइप्स के क्राइम होते रहते हैं, ओनली कि आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया. किसी
फालतू वेंडर से आपने ये सर्विसेज ली है जो वेंडर्स को नॉलेज नहीं रहता, और ऐसा 100% अभी तक हम लोग को मिला नहीं कि जिसने ये पूरा सिक्योरिटी पैचअप करके दिया हो, लेकिन बहुत सारी गलती बहुत सारे बैंकों में होती रहती है। अभी इसमें हम लोग को मतलब ये विदिन 7 to 8 ईयर्स में हम लोग का एक्सपीरियंस ये हुआ है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, देखो ये कोऑपरेटिव बैंक आ गई, अर्बन बैंक्स आ गए, जनरली ये लोकल लेवल पे इसका इम्पैक्ट होता है। एक तो कस्टमर्स कम हो जाते हैं, सोशल मीडिया हमारे पास इतना पावरफुल है कि वो सब इंफॉर्मेशन आपकी वायरल हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को यही बोला है कि जो डिग्निटरीज है, जो चेयरमैन्स है, जो डायरेक्टर्स है, कि सर देखो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना तो ये डायरेक्टली आपकी चेयर को ही चैलेंज किया जैसा होता है कि ये आप, तो ये सिक्योरिटी है मेन आपकी, तो इसको भी आपको उतना ही स्ट्रेंथन करना है कि जैसा आपको खुद को, क्योंकि ये अगर कुछ होता है इश्यूज़ ये न्यूज़ में आते हैं और पॉलिटिकली इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, उसमें वो आपके चेयर भी जाती है, मैनेजमेंट को डायरेक्ट हिला देते हैं, और ये बहुत ही वल्नरेबल चीज़ हो रही है आज की तारीख में। और अभी 5G आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। आपके जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जो स्टाफ है आपका उनको भी ये ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट एंड लास्ट ये है कि डिसिप्लिन, ये हमको किधर भी नहीं दिखा। डिसिप्लिन कोई भी बैंक में नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, सीनियर अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बहुत कमी दिखी हम लोग को। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये चीज़ें आराम से होती है। ये केस में भी वही हुआ था कि डाटाबेस का एक्सेस लिया हैकर ने, वो तो ऑपरेट कर रहा था नाइजीरिया से, लेकिन उसका इतना नेटवर्क था इंडिया में कि वो विदिन 5 to 10 मिनट्स ये लोग मनी विड्रॉल कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ऐसे कस्टमर चुने जिसके अकाउंट में 1,000 था, और डाटाबेस में इन्होंने 1,000 रुपये का वैल्यू इन्होंने 80 लाख कर दिया। 1,000 इज इक्वल टू 80 lakhs, और 80 lakhs कर दिया। और उन्होंने कुछ कार्ड्स लिए थे सेम बैंक के, और वो कार्ड्स को ही उन्होंने अथॉरिटी दे दी। जैसे अभी हम लोग ATM से विड्रॉ करते हैं तो 40,000 या 50,000 का एक लिमिट रहता है, लेकिन उन्होंने लिमिट भी लिमिटलेस कर दिया। तो वो क्या हो गया कि एक कार्ड के उन्होंने मल्टीपल कार्ड्स किए, और इंडिया में 28 लोकेशन से इन्होंने हर ATM से जितना निकलता है उतना किया, क्योंकि उसको लिमिट नहीं था। उन्होंने डाटाबेस में लिमिट ही एक्सटेंड कर दिया था, अनलिमिटेड कर दिया था। तो ऐसे भी होते हैं। और वो फिर हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कुछ फायरवॉल और सर्वर के बीच में लोड बैलेंसर है जो 2 दिन का ही लॉक रख सकता है। और जैसे विवेक सर ने बताया वैसे ये केस हमारे पास आई 2 महीने बाद, और अगर लॉक्स जाते हैं तो हम लोग को फिर IP कैसे मिलेंगे, कहाँ से उसका चेन ऑफ कस्टडी, मतलब कहाँ से उसको रिक्वेस्ट आई थी, वो पूरा एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन, वो चैलेंजेस हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब ये जनरल इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोगों से हुई है। तो मेरा बोलना हम लोग का ये है कि आप ये प्रिकॉशंस प्लीज़ ले लो। आपको जो चाहिए रिक्वेस्ट, जब भी आपको चाहिए, जो भी मतलब आपको कुछ इश्यूज़ हो, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, वो हम लोग से एनी टाइम 24/7 ले लीजिए। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको अवेयर करें, आपको नॉलेजफुल इसका जो भी है उसका आपको नॉलेज शेयर करें। और जो भी आपकी कुछ इश्यूज़ हो गए, टेक्निकल हो गए, उसमें भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। तो जनरली सर इसके बोलने का मीनिंग यही है कि आपका जो सिस्टम है आपको वो सिक्योर कर रहा है 100%। और डायरेक्टर आपको CISOs अपॉइंट कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक में इश्यूज़ ये रहते हैं कि वो उतना जो फंडिंग नहीं कर पाते या फिर वो कंप्लायंस फॉलो नहीं कर सकते। RBI के जो एनेक्शर है 2018-19 में हुए हैं, उसमें एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3, एनेक्शर 4 में आपका बताया गया है कि कौन सा बैंक IMPS स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मतलब उसकी डिफ्रेंशिएट किया है। तो आपको उसको अलॉट करना है, आप कौन से कैटेगरी में है उस हिसाब से आपको ये सिक्योरिटी लेनी है। बहुत सारे बैंकिंग क्या होता है कि कंसल्टेंट आपको बोलते हैं कि हार्डवेयर आप ले लो और पूरा सेटअप आपके इसमें बैंक में बिठा देते हैं, तो वो भी कॉस्टली होता है। अभी क्लाउड भी आ गया है, तो क्लाउड भी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको इनबिल्ट सिक्योरिटी भी होता है। तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ चेयरमैन और डायरेक्टर कि आपको इसको सिक्योर रखना है। क्योंकि वंस कोई इंसिडेंट होता है ना सर, तो उसके बाद की चीज़ है ना, हम लोग को मालूम है कि उनकी हालत क्या होती है। तो प्लीज़ आप अगर अवेयर करो और उसको
मतलब आप अगर जाके इसके बाद प्रैक्टिकली इस पे वर्कआउट करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम थोड़ा सा कम है अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि ये इंटरेक्शन सेशन है, बहुत सारे Generally- क्वेश्चंस रहेंगे एज अ कोऑपरेटिव बैंक, तो हम लोग डायरेक्टली अभी क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ये हम लोग खाली अभी थोड़ा सा ये करते हैं क्योंकि अब टाइम अभी हमारा लिमिट थोड़ा ही था कि आपने क्या क्या करना है। इंडिव्हिज्युअल लेवलला तुम्हाला भेटे सांगतो। जनरली हम लोग आपसे चाहे तो पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं, आपको क्या क्या उसमें सिक्योरिटी मेजर्स लेने। एनपीसीआई आता है, उसके कुछ गाइडलाइंस इशू होते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है। आपका कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे ना तो आप ओनली 2 क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव नहीं। मेरी सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि एसपी सर और उनकी सभी टीम हमारे साथ में दोपहर तक खाना खाने तक हमारे साथ में रहने वाले, उसके बाद वो मुंबई जाने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपके जो क्वेश्चंस आंसर्स हो गए, जो कुछ पूछना है वो भी आप पूछ लीजिए, लेकिन वो साथ में है, उनके साथ आप पर्सनल डिस्कस करते हैं और उनका अवेयरनेस आपको बढ़ाना है, आपके बैंक में बुलाना है, आपके एसोसिएशन में बुलाना है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अवेयरनेस का बड़ा काम वो करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे साथ ये लोग रहेंगे, उनके साथ आप डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा।